إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا، مسلمان بنایا، ایمان اور توحید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کیا، حق اور باطل کی پہچان کرائی، اور بے شمار رحمت اور سلامتی ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے تمام انسانیت کو جنت کی راہ دکھانے کے لیے اور جہنم کی راہ سے ڈرانے کے لیے، جہنم اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے، جس نے ہمیں اللہ کے دین کو، اللہ کی توحید اور اللہ پر ایمان کی حقیقت کو جس نے ہمیں تعلیم دی، بے شمار رحمت اور سلامتی ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، سلف صالحین کی سیرت اور ان کے خوف الہی اور خشیت الہی کو دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ سلف صالحین، وہ صحابہ اور تابعین ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کا کوئی عمل ضائع اور رائگاں نہ ہو جائے، ان کی کوئی نیکی برباد نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ان کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہ ہو۔ وہ ہمیشہ اس بات سے ڈرا کرتے تھے، بلکہ صحابہ عمل کرنے کے بعد اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا کہ انہیں اس بات کا خوف لاحق ہوتا کہیں ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں ٹھکرا نہ دیا جائے اور ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہ ہو۔ میرے بھائیوں، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کو کئی آیتیں قرآن کے اندر ایسی ملیں گی جو یہ حقیقت واضح کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں بہت سارے اعمال ٹھکرا دیے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں بہت سارے اعمال، بہت ساری نیکیاں، بہت ساری باتیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن
कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो दुनिया के अंदर बहुत अमल किए होंगे, दुनिया के अंदर बहुत नमाजें पढ़े होंगे और दुनिया के अंदर बहुत सारी नेकियां किए होंगे। आमिलतुन, वो चेहरे अमल करने वाले होंगे, दुनिया के अंदर इबादत करने वाले होंगे, लेकिन क़यामत के दिन नासिबा, वो चेहरे थके हुए होंगे, वो चेहरे थके हुए होंगे। तस्ला नारन हामिया, दुनिया में अमल करने के बावजूद उन चेहरों को, उन लोगों को जहन्नम में, दहकती हुई आग में दाखिल किया जाएगा। मेरे भाइयों, मालूम यह हुआ कि क़यामत के रोज कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो दुनिया के अंदर अमल किए थे, उनके अमाल अल्लाह के यहां कबूल ना होने की वजह से उन्हें जहन्नम की दहकती हुई आग में दाखिल किया जाएगा। मेरे भाइयों, सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला अल्लज़ीना दल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। कह दीजिए ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बतला दीजिए मेरे बंदों को, हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला, क्या हम तुम्हें खबर ना दे उन बंदों के बारे में जो दुनिया के अंदर बहुत अमल किए, दुनिया के अंदर अमल किए, लेकिन क़यामत के रोज वो सबसे ज्यादा खसारे में होंगे। बिल अक्सरीना आमाला, नेकियां होने के बावजूद, अमल करने के बावजूद क़यामत के दिन वो सबसे ज्यादा खसारे में होंगे। कौन है वो लोग? अल्लज़ीना वल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिनकी दुनिया में की गई मेहनत रायगा कर दी जाएगी, जाहिर हो जाएगी, जिनकी कोशिश दुनिया के अंदर, जिनकी कोशिश, जिनकी मेहनत, जिनका अमल जाहिर हो जाएगा। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, हालांकि दुनिया के अंदर वो ये समझ रहे थे कि वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। दुनिया के अंदर वो ये समझ रहे थे कि हमारे अमाल बहुत ज्यादा है, हमारी नेकियां बहुत ज्यादा है, हमारी नमाजें बहुत ज्यादा है, हमारी तिलावत बहुत ज्यादा है। दुनिया के अंदर वो अपने अमाल पर और अपनी नेकियों पर बहुत खुश थे, वो ये समझ रहे थे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, मगर अल्लाह के यहाँ उनकी कोशिश, उनकी वो मेहनत और उनका वो अमल जाये हो जाएगा, जाये कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस हकीकत को कुरान के अंदर एक मिसाल के जरिए वाज़ेह किया। अल्लाह फरमाते हैं कुरान के अंदर, अयवद्दु अहदुकुम अन तकूना लहू जन्नतुन मिन नखीलिन व अनाबिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार व यकूनु लहू फीहा मिन कुल्लि थमरात व असाबहु अल-किबर व लहू ज़ुर्रियतुन दुअफा फअसाबहा ऐसारुन फीहि नारुन फहतरक़त कज़ालिका युबय्यिनु अल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत के अंदर इस हकीकत को बयान फरमाया है कि दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो अमल करेंगे, अमल करने वाले होंगे, लेकिन उनके अमाल के साथ साथ उनके अंदर कुछ ऐसी खामियां पाई जाएंगी, कुछ ऐसी कमियां पाई जाएंगी, जिन कमियों की वजह से, जिन गलतियों की वजह से उनके वो अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। अल्लाह ने इस हकीकत को बयान किया कुरान करीम की आयत में, अयवद्दु अहदुकुम अन तकूना लहू जन्नतुन मिन नखीलिन व अनाबिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार व लहू फीहा मिन कुल्लि थमरात। अल्लाह फरमाते हैं, तुम में से कोई शख्स क्या इस बात को पसंद करेगा कि उसके पास खजूर और अंगूर के बागात हों और मुख्तलिफ किस्म के मेवे और फलों के बागात हों, और बूढ़ा हो चुका हो वो शख्स, उसके पास वलहू ज़ुर्रियतुन दुअफा, और उसके पास नातमा कमजोर छोटे बच्चे हों, खुद बूढ़ा हो चुका हो और उसके पास ये बाग हो खजूर का, अंगूर का और फलों का, क्या वो इस बात को पसंद करेगा फअसाबहा ऐसारुन फीहि नारुन फहतरक़त, कि ऐसी आंधी आए, आग को लेकर आंधी आए और उसके बाग को जला दे, क्या वो इस बात को पसंद करेगा? सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस आयत के ताल्लुक से बयान फरमाते हैं, सहीह बुखारी के अंदर मौजूद है कि इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस शख्स की मिसाल दी है जो दुनिया के अंदर अमल करता है, नेकियां करता है, इबादत करता है, अल्लाह की इताअत करता है, मगर शैतान दाखिल होता है और उसके अमल को जला देता है। शैतान उस बंदे से, उस अमल करने वाले बंदे से, उस आबिद बंदे से, उस नेक बंदे से कुछ ऐसी गलतियां करवाता है जिन गलतियों की वजह से उसके वो अमाल जाया हो जाते हैं। मेरे भाइयों, आज इस खुतबे जुमा में मैं बतलाऊंगा कि कौन सी गलतियां हैं, वो कौन से जराइम हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनकी मौजूदगी में इंसान का अमल जाया हो जाता है, बर्बाद हो जाता है।
इसका जानना इंतहाई जरूरी है। मेरे भाई, बहुत सारे लोग नमाज के पाबंद, रोजे के पाबंद, तिलावत कुरान के पाबंद, नेक हैं, हराम चीजों से, हराम कामों से, हराम हरकतों से वो अपने आप को बचाए रखे हुए नेकियां हैं उनके पास, मगर इन नेकियों के साथ साथ उनके अंदर कुछ ऐसी गलतियां पाई जाती हैं जिन गलतियों की वजह से उनके अमाल ज़ाय और बर्बाद कर दिए जाएंगे। आज मैं उन गलतियों की तरफ रहनुमाई करूंगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन गलतियों से हम सबको महफूज रखे। जो गलतियां इंसान के अमाल को ज़ाय कर देती हैं, जो गलतियां हमारी नमाजों को ज़ाय कर दें, जो गलतियां हमारे रोजों को ज़ाय कर दें, अल्लाह उन गलतियों से हमारे दिलों को और हम सबको महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस हकीकत को कई जगहों पर वाज़ेह किया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक के अमल को कबूल नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर अमल को कबूल नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उन अमाल को कबूल फरमाता है जिन अमाल के अंदर कबूलियत के शराइत पाए जाएं, और जिस बंदे की जिंदगी उन मखसूस जराइम और गलतियों से पाक होगी, अल्लाह उन्हीं बंदों के अमाल को कबूल फरमाएगा। कुरान करीम में फरमाते हैं इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह मुत्तकियों के अमाल कबूल फरमाता है। इस आयत के ज़िम्न में सहाबी रसूल अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अगर मुझे मालूम हो जाए, अगर मुझे मालूम हो जाए, और आप उनके इस कौल से अंदाजा लगाएं कि सहाबे किराम के दिलों में किस कदर खौफ था इस बात से कि कहीं उनका अमल ज़ाय ना हो जाए, उनकी इबादत ज़ाय ना हो जाए, उनकी नमाज ज़ाय ना हो जाए। सहाबी कहते हैं अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु, अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरी जिंदगी की कोई 2 रकात नमाज कबूल हो गई है अल्लाह की बारगाह में, तो मेरे लिए दुनिया और दुनिया की सारी नेमतों से ज्यादा बेहतर। सहाबा किराम डरते थे, और आज हम हैं, हमारे दिल में कभी यह ख्याल भी नहीं आता कि हमारी ये नमाज कहीं ज़ाय ना हो जाए, हमारे ये रोजे कहीं ज़ाय ना हो जाए, हमारी ये नेकी कहीं ज़ाय ना हो जाए। कभी हमारे दिलों में इसका खौफ एहसास पैदा ही नहीं होता, और हम ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, हम मुत्तकी परहेज़गार। अल्लाह कहता है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह मुत्तकियों के अमाल कबूल फरमाता। तो सहाबी अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरी जिंदगी की कोई 2 रकात नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई है, तो ये अहब्बु इलैया मिन दुनिया व मा फीहा, तो मेरे नजदीक वो अमल, वो 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया की सारी नेमतों से ज्यादा महबूब। मेरे भाइयों, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आज आपके सामने वो उन गलतियों की निशान नहीं करूंगा जिन गलतियों की वजह से इंसान के अमाल, इंसान की नमाजें, इंसान के रोजे और दीगर नेकियां ज़ाय और बर्बाद हो जाती हैं। आए कुरान और अहादीस की रोशनी में ये सारे मसाइल आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहला मसला, सबसे पहला जुर्म, पहली गलती, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा जुर्म जिसकी मौजूदगी में इंसान के बड़े से बड़े अमाल और इंसान की अजीम से अजीम नेकियां ज़ाय हो जाती है, वो है शिर्क और कुफ्र। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरक्ता लयहबतन्न अमलुक। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी तरफ वही की जा रही है जैसे कि तुमसे पहले के लोगों की तरफ, तुमसे पहले के नबियों की तरफ वही की गई थी। वही क्या है? क्या वही की जा रही है? नबी की तरफ और सारे नबियों की तरफ वही की गई। क्या? लइन अशरक्ता लयहबतन्न अमलुक। ऐ नबी, अगर तुमने भी शिर्क किया तो तुम्हारे अजीम अमाल, तुम्हारी अजीम कुर्बानियां, तुम्हारी अजीम मेहनतें ज़ाय बर्बाद हो जाएंगी। लयहबतन्न अमलुक, तुम्हारा अमल जरूर बाजरूर ज़ाय हो जाएगा। मेरे भाइयों, मालूम है इस आयत करीमा दूसरी आयत है, वलो अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर इन्होंने शिर्क किया तो इस शिर्क की वजह से इनके सारे अमाल ज़ाय हो जाएंगे। कुफ्र के ताल्लुक से अल्लाह फरमाते हैं, वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबिता अमलुहु। और जो ईमान के साथ साथ कुफ्र करेगा, ईमान के साथ साथ कुफ्र करेगा, उसके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे वो शख्स जो ईमान कबूल करने के बाद मुर्तद हो जाए, इस्लाम से फिर जाए, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह फरमाते हैं, तुम में से जो शख्स मुर्तद हो गया, फयमुत वहुव काफिरुन, और इस्लाम की तरफ पलट कर नहीं आया, काफिर होकर मरा, फउलाइका अल्लज़ीना हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, दुनिया और आखिरत उनके अमाल क्या है? ज़ाय हो जाएंगे। मेरे भाइयों, इन आयत करीमा से ये बात वाज़ेह हो गई कि शिर्क, कुफ्र और मुर्तद होना
یہ انسان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے کاموں میں کسی کو شریک کرنا، جو کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ تنہا انجام دینے والا ہے ان کاموں کے بارے میں، ان کاموں میں سے کسی کام کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ نہیں فلاں بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن خوبیوں کا تنہا مالک ہے، اللہ کی جو ذاتی اوصاف ہیں، جو اس کی ذاتی خوبیاں ہیں، جن خوبیوں کا وہ تنہا مالک ہے، ان خوبیوں میں سے کسی خوبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں بھی یہ خوبی اس خوبی کے مالک، یہ شرک۔ ایسے ہی تمام قسم کی عبادتوں کا حقدار تنہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بھی عبادت کسی غیر کے لیے کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو شرک کی موجودگی میں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے شرک کیا تمہارے سارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، چاہے نیکیوں کا انبار کیوں نہ ہو، بھلا انبیاء کرام سے بھی زیادہ کسی کے پاس نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ انبیاء کرام سے زیادہ کوئی نیک اور متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ کسی کے پاس نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو، تمام نبیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے نبی اگر تم نے شرک کیا تمہارے اعمال ضرور ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی کفر یہ ہے کہ اللہ کو جھٹلانا، یا اللہ کے کلام کو جھٹلانا، نبی کو جھٹلانا، یا نبی کی باتوں کو، سنتوں کو، تعلیمات کو، احادیث کو جھٹلانا، ایسے ہی اللہ کا مذاق اڑانا، یا اللہ کے کلام کا، اللہ کی تعلیمات کا، اللہ کے دین کا، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا، یا نبی کا مذاق اڑانا، یا نبی کی باتوں کا، نبی کی تعلیمات اور احادیث کا مذاق اڑانا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، کفر کے اقسام میں سے کوئی بھی کفر کرنا یہ انسان کے سارے اعمال کو ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کلمہ گو شخص، ایک موحد شخص، ایک کلمہ گو، ایک مسلمان کیسے شرک کر سکتا ہے، کیسے کفر کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو ایمان کے ساتھ ساتھ کفر کرے گا، معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی موجودگی میں بندہ کفر کر سکتا ہے، ایمان لانے کے باوجود بھی بندہ کفر کر سکتا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہیے، قل کہہ دیجئے، أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ کا، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے رسول کا تم مذاق اڑا رہے ہو؟ لا تعتذروا، عذر نہ پیش کرو، تمہارا کوئی بھی عذر قبول نہیں ہوگا۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنے ایمان کے بعد بھی کفر کیا۔ ایمان کی روشنی ملنے کے بعد، توحید کی روشنی ملنے کے بعد، قرآن کی روشنی ملنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ میرے بھائیوں، اپنی زبان کی بات کرنا، زبان سے ایسی بات نہ بولنا جو بات کفریہ باتیں ہوں، اللہ کی تقدیر پر اعتراض، اللہ کی شان میں گستاخی، رسول کی شان میں گستاخی، رسول کی تعلیمات اور احادیث پر اعتراض، اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات اور اللہ کی آیتوں پر اعتراض، اور اس طریقے سے دین اسلام پر اعتراض، یہ کیا ہے؟ سراسر کفر ہے۔ ایسی باتیں زبان سے نہ کہیں جس سے اللہ کی شان میں گستاخی ہو، اللہ کے دین کا مذاق ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی ہو، ان کی باتوں کا مذاق ہو، ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالیں، ورنہ یہ کفر انسان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، انسان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ تو سب سے بڑی غلطی جس کی بنا پر انسان کی نمازیں اور روزے اور حج و زکات اور سارے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں، وہ ہے کفر اور شرک، کفر اور شرک۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، ریاکاری، دوسرا گناہ، دوسری غلطی جس کی وجہ سے انسان کا عمل اللہ کا قبول نہیں ہوتا، انسان کا عمل ضائع کر دیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ریاکاری اور دکھاوا ہے۔ اگر کوئی شخص اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ اسے نمازی کہیں، اس لیے وہ دین کو سیکھ رہا ہے، اس لیے وہ علم حاصل کر رہا ہے کہ لوگ اسے عالم اور قاری کہیں، کوئی شخص اس لیے جہاد کر رہا ہے، لوگ اسے مجاہد کہیں، لوگ میں اس کی شہرت ہو، کوئی شخص اس لیے صدقات و خیرات کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے کہ لوگ اسے سخی و فیاض کہیں، اس لیے نیکیاں کر رہا ہے کہ لوگ اسے نیک کہیں، لوگ متقی سمجھیں، اچھا سمجھیں، لوگ اس سے محبت کریں، لوگوں کی نظروں میں وہ اچھا ہو، اس لیے اگر کوئی شخص نیکیاں کر رہا ہے دکھاوے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی زیب و زینت کو حاصل کرنے کے لیے، تو میرے بھائیوں اللہ اس کے اعمال کو ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
अल्लाह फरमाते हैं मन काना युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अमालहुम फ़ीहा। जो शख्स अमल के जरिए दुनिया चाहता है, जो शख्स अमल के जरिए दुनिया की ज़ेनो ज़ीनत चाहता है, इसलिए अमल कर रहा है, इसलिए इबादत कर रहा है कि वो दुनिया में उसकी शोहरत हो, उसकी इज्जत हो और उसका नाम हो, नुवफ़्फ़ी इलैहिम अमालहुम फ़ीहा। हम ऐसे लोगों के अमाल का बदला पूरा पूरा दुनिया में दे देंगे। दुनिया में उसे शोहरत मिल जाएगी, इज्जत मिल जाएगी, लोगों की मोहब्बत हासिल हो जाएगी, लोग उसे अच्छा समझेंगे। दुनिया के अंदर उसके अमाल का हम भरपूर बदला दे देंगे। वहुम फीहा ला युबखसून, और उसमें कोई जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाएगी। पूरा पूरा बदला अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया के अंदर दे देगा। अल्लाह किसी के अमल को जाये नहीं करता है। अगर कोई शख्स रियाकारी की बिना पर दिखावे के लिए दुनिया के अंदर अमल करता है, दुनिया के अंदर अल्लाह उसे बदला दे देगा, उसकी मेहनत का बदला दे देगा। मगर अल्लाह कहते हैं वउलाइकल्लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार, मगर उनके लिए आखिरत में क्या है? जहन्नम। वहबिता मा सनअू फीहा, और दुनिया के अंदर उन्होंने जो अमल किया है, जो मेहनत की है, जो अमाल किए हैं, वो सब क्या जाया हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। वो बातिल मा कानू यामलून, उनके सारे अमाल बातिल करार दिए जाएंगे। अल्लाह उस अमल को कबूल नहीं करता है जिस अमल में रियाकारी हो, दिखावा। अल्लाह उस अमल को कबूल करता है जिस अमल में इखलास हो, लिल्लाह को, अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह की मोहब्बत में बंदा अमल कर रहा हो। अगर लोगों से करीब होने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए अगर वो अमल कर रहा है, उसका वो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। और इस ताल्लुक से बहुत सारी हदीस मौजूद है जो आप लोग इससे पहले सुन चुके हैं। मेरे भाइयों, हदीस से फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी अमल को कबूल करता है जिस अमल का मकसद क्या हो? अल्लाह की रजा। जिस अमल का मकसद अल्लाह की रजा हो, जो अल्लाह की रजा के लिए अमल करता है, अल्लाह उसी अमल को कबूल फरमाता है। और जिस अमल में अल्लाह की रजा ना हो, वो अमल अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। यह हदीस सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है। ऐसे ही तीसरा जुर्म जिसकी मौजूदगी में, जिसकी वजह से इंसान के अमाल ज़ाय हो जाएंगे, वो तन्हाई और खलवत में हराम काम करना। तन्हाई में, खलवत में, कोई जब वो तन्हा होता है, मजलिस में होता है, अच्छी बातें करता है, अच्छे काम करता है, लोगों के सामने होता है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, हज भी करता है, ज़कात भी देता है, अच्छे अमाल करता है, लेकिन जब तन्हाई में होता है और हराम काम करने का मौका मिलता है, फौरन कर बैठता है, फौरन कर बैठता है। ऐसे बंदे को अल्लाह, ऐसे बंदे के अमाल को अल्लाह क़यामत के रोज़ ज़ाया बर्बाद कर देगा। सुनन इब्न माजा की हदीस, सहाबी रसूल थौबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी नेकियां तहामा के रोशन पहाड़ों के बराबर, यातूना बिहसनात अमसाल जिबाल तहामा। हदीस के अल्फाज हैं, आप फरमाते हैं क़यामत के रोज वो अपनी नेकियां लेकर के आएंगे तहामा के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बराबर, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी सारी नेकियों को ज़ाया कर देगा, सारी नेकियों को ज़ाया कर देगा, उनका कोई भी अमल अल्लाह के कबूल ना होगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, सिफ़हुम लना या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं, उनकी पहचान क्या है, उनकी सिफात क्या है, वो कैसे लोग हैं जिनकी नेकियां, जिनके अमाल पहाड़ों के बराबर नेकियां ज़ाया कर दी जाएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग भी उन्हीं लोगों में से हैं। सहाबा किराम डरते थे मेरे भाइयों। आज हम अमल करने के बाद हमारे दिल में इस बात का एहसास और खौफ नहीं पैदा होता कहीं हमारा ये अमल कबूल हुआ या नहीं कबूल हुआ। हम इसकी परवाह करते ही नहीं, कबूलियत की परवाह किसी के दिल में नहीं कि हमारा वो अमल अल्लाह के कबूल हो रहा है या कबूल नहीं हो रहा है। मेरे भाई, आप हमारे वो ऐसे लोग होंगे जो तुम ही में से होंगे, मुसलमानों में से होंगे। युसल्लून, नमाजें पढ़ते थे दुनिया के अंदर, यसूमून, रोजे रखते थे दुनिया के अंदर, वे तसद्दक़ून, और सदक़ात व खैरात किया करते थे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलऊ बिमहारिमिल्लाह इंतहकुहा, नमाजें पढ़ते थे, रोजे रखते थे, सदक़ात व खैरात करते थे। एक गलती उनके अंदर थी, वो गलती ये थी कि जब वो तन्हाई में होते और हराम काम करने का मौका मिलता फौरन कर बैठते थे। तन्हाई में वो अल्लाह से नहीं डरते थे, तन्हाई में वो हराम काम किया करते थे। अल्लाह उनकी इस गद्दारी और उनके इस मक्र और उनकी इस फरेब और उनकी इस धोखाधड़ी को, अल्लाह उनकी धोखाधड़ी की बिना पर अल्लाह उनके अमाल को ज़ाया कर देगा। मेरे भाइयों, मुत्तकी बंदा
न सिर्फ मजलिस में अल्लाह से डरता है बल्कि तन्हाई में भी अल्लाह से डरता है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो वो हर जगह अल्लाह से डरता है। तन्हाई में हो तो भी बुराइयों से बचता है और मजलिस में हो तो भी क्या है, बुराइयों से बचता है। तो मेरे भाइयों, तन्हाई में खलवत में हराम काम कर बैठना ये ऐसा अमल है, अगर बंदा तौबा किए बगैर दुनिया से चला गया, तौबा नहीं किया, तो इसकी इस गद्दारी की वजह से अल्लाह उसके अमाल को ज़ाया बर्बाद कर देगा। चौथा जुर्म जिसकी वजह से इंसान के अमाल ज़ाया हो जाएंगे वो है अल्लाह पर कसम खाना। अल्लाह पर कसम खाना, अल्लाह पर कसम खाना यानी अल्लाह के ताल्लुक से ये कहना कि अल्लाह की कसम अल्लाह ऐसा नहीं करेगा, यानी अल्लाह के बारे में कसम खाना, अल्लाह के बारे में कसम खाना कि अल्लाह की कसम अल्लाह ऐसा नहीं करेगा, अल्लाह की कसम अल्लाह बारिश नहीं बरसाएगा, अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। अल्लाह पर कसम खाना, अल्लाह पर कसम खाना यह ऐसा जुर्म है कि इस जुर्म की मौजूदगी में अल्लाह इंसान के अमाल को ज़ाया कर देगा। अल्लाह, किसी को यह हक नहीं है कि वो अल्लाह की जात पर कसम खाए, अल्लाह के खिलाफ कसम खाए, अल्लाह के अमाल के खिलाफ कसम खाए। मेरे भाइयों, सही मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स का तज़किरा फरमाया जिस शख्स ने कहा था कि अल्लाह की कसम अल्लाह खुला को नहीं माफ करेगा, अल्लाह की कसम अल्लाह खुला को नहीं माफ करेगा। अल्लाह ने फरमाया मन वल्लज़ी यतअल्ला अलैया, कौन है जो मुझ पर कसम खा रहा है, कद गफरतु लिफुलान व अहबब्तु अमलक, कौन है जो मुझ पर कसम खा रहा है मैंने फुला को माफ कर दिया और तेरे अमल को ज़ाया कर दिया। आमतौर से मेरे भाई लोग इसका ख्याल नहीं करते और इसे कोई जुर्म समझते ही नहीं और वो अल्लाह की जात पर कसम खाते हैं। अल्लाह की जात पर कसम खाना और ये कहना कि अल्लाह की कसम अल्लाह ऐसा नहीं करेगा, अल्लाह खुला को माफ नहीं करेगा, हालांकि अल्लाह वो काम करने पर कादिर है, अल्लाह वो काम करने वाला है। अल्लाह के कामों के बारे में अल्लाह पर कसम खाना कि अल्लाह ऐसा नहीं करेगा, यह ऐसा जुर्म है जिसकी मौजूदगी में इंसान के अमाल बर्बाद हो सकते हैं, ज़ाया हो सकते हैं। और क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि अमल करने के बावजूद उसके चेहरे क्या थके होंगे, आमिलतुन नासिबा, अमल करने के बावजूद चेहरे क्या थके हुए होंगे, नाकाम और नामुराद होंगे। ऐसी मेरे भाइयों, पांचवी गलती जिसकी वजह से इंसान का अमल ज़ाया और बर्बाद हो जाता है वो है अल्लाह के दीन को नापसंद समझना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो दीन नाज़िल किया है, जो अहकामात नाज़िल किया है, जो कानून नाज़िल किया है और हमारे लिए जो दस्तूर अमल नाज़िल फरमाया है, उस दस्तूर, उस कानून, उस दीन, उस इबादत और अहकामात को नापसंद समझना। अल्लाह ने ऐसा हुक्म क्यों दिया? अगर जो बंदा वो अमल कर रहा है, अगर वो अमल कर रहा हो, अगर वो नापसंद समझ रहा है उस चीज को, दीन के उस हुक्म को, दीन की किसी बात को अगर वो नापसंद समझ रहा है, अल्लाह के किसी हुक्म को नापसंद समझ रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हुक्म को, किसी सुन्नत को, किसी अमल को नापसंद समझ रहा है, नफरत कर रहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी इस जुर्म की वजह से उसके अमाल को ज़ाया फरमा देगा। हदीस कुरान की दलील, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाह फअहबत अमालहुम, ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाह फअहबत अमालहुम। अल्लाह फरमाते हैं उन लोगों ने अल्लाह के उतारे हुए दीन को नापसंद समझा, अल्लाह के उतारे हुए दीन से नफरत की, फअहबत अमालहुम, अल्लाह ने उनके अमाल को बर्बाद कर दिया, अल्लाह ने उनके अमाल को बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों, मालूम हो इस आयत करीमा से कि दीन के किसी हुक्म को नापसंद समझना, दीन की किसी बात से नफरत करना, ये अमाल को ज़ाया कर देगा, अमाल को, नेकियों को, नमाजों को ज़ाया कर देगा। ऐसे मेरे भाइयों, ऐसे ही अमाल ज़ाया करने वाले असबाब और जराइम और गलतियों में से एक गलती यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान गुस्ताखी। ये इसी गलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दस की तौहीन करना और इसी तरीके से आपके साथ गुस्ताखी करना, यह ऐसा जुर्म है, ऐसी गलती है कि इस गलती की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान की सारी बातों को ज़ाया कर देगा और उसे एहसास नहीं होगा। सूरह हुजरात पढ़ें, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ला तरफऊ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी, नबी की आवाज पर अपनी आवाजों को बुलंद
न करो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर मौजूद थे, सहाबे किराम को हुक्म हो रहा है कि तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से बुलंद नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज तो तुम नबी से गुफ्तगू करो, तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से पस्त हो, आहिस्ता, तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से बुलंद ना हो। वला तजहरु लहु बिलकौल कजहरि बअदिकुम लिबअद, और जैसे तुम आपस में एक दूसरे से बुलंद आवाज से बात करते हो, तुम नबी से बुलंद आवाज में बात न करो। अन तहबत अमालुकुम, वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। वो अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होगा। मेरे भाई, नबी से ऊंची आवाज में बात कर लेना या आवाज का नबी की आवाज से बुलंद, अपनी आवाज का नबी की आवाज से बुलंद करके बात करना, सहाबे किराम को हुक्म हो रहा है तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। आज हम देखें कि हमारे मुआशरे में, हमारे मुस्लिम मुआशरे में, हमारे मुसलमान भाइयों में किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तौहीन की जा रही है। आपकी सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, आपकी आदिस मुबारका पर, आपकी तालीमात पर एतराज किया जा रहा है और तहकीर की निगाह से देखा जा रहा है। उन अमाल को, उन सुन्नतों को हकारत की नजर से देख रहे हैं। क्या नबी की शान गुस्ताखी नहीं है? क्या ये नबी की शान गुस्ताखी नहीं? और इंसान बड़े ही जुरात के साथ कहता है कि हम इसे नहीं मानते। नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपका फरमान अल्लाह का फरमान होता है। वो मा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोलते हैं दीन के मामले में। जो कुछ बोलते हैं अल्लाह की तरफ से वही होती है। नबी की इताअत अल्लाह की इताअत है, नबी का फरमान अल्लाह का फरमान है। लेकिन अफसोस कि आज लोग नबी की बातों को, नबी की तालीमात को, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की अहादीस को, नबी की सुन्नतों को हकारत की निगाह से और बड़ी जुर्रत के साथ इनकार कर देते हैं, सिर्फ इस बिना पर कि उनका अमल उसके खिलाफ होता है। जिंदगी भर एक अमल करते आए, जिंदगी भर एक अमल करते आए हैं, अब देखते हैं कि हदीस, अरे ये हदीस, ये हमारा अमल इसके खिलाफ है, हदीस हमारे अमल के खिलाफ है, फौरन बगैर किसी तहकीक के फौरन क्या नहीं मानते, नहीं जो हम कर रहे हैं वो सही। नबी फरमाया कुछ, हमारा अमल कुछ और हो, और हमें वो बात मिले कि नहीं अल्लाह के नबी का अमल ये था, आपका फरमान ये है, आपका हुक्म ये है, और हम देख रहे हैं कि हमारा अमल इसके खिलाफ है, लेकिन इस बिना पर नहीं छोड़ रहे हैं कि फिरकाबंदी, मसलकी तासुब, जमात बंदी, ग्रुप बंदी की बिना पर नबी की बातों को ठुकरा दे रहे हैं, नबी की बातों पर दूसरों की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, नबी की तालीमात पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की तालीमात पर दूसरों की तालीमात को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस वक्त है कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लिया, हमारे लिए निजात काफी है। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी इसलिए दुनिया के अंदर भेजे हैं कि उनकी इताअत की जाए, उनकी इत्तिबा और पैरवी की जाए। जो करने के लिए कहें उन कामों को करें, जिन कामों से रोके उन कामों से क्या है दूर रहे। ये हम पर वाजिब है, और ये नबी का हक उम्मतियों पर है कि नबी की जो बात उन्हें मिले वो बिना किसी चूं चरा के, बगैर किसी पसोपेश के उनकी बातों को कबूल कर लें, उनके अहकामात को कबूल कर लें, और उनकी तालीमात को, उनकी सुन्नतों को अपनाएं। ये नबी का हक उम्मतियों पर है। मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, वला तुबतिलू अमालकुम, और अपने अमाल को बर्बाद न करो। अल्लाह की मुखालफत करके, अल्लाह की नाफरमानी करके, रसूल की मुखालफत करके, रसूल की नाफरमानी करके अपने अमाल को बर्बाद न करो। हदीस फरमाते हैं, मुस्लिम की हदीस फरमाते हैं, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस अमल पर हमारा हुक्म मौजूद नहीं है, तो अमल क्या है, मरदूद है, नाकाबिल कबूल है, ठुकरा दिया जाएगा, वो अमल अल्लाह का कबूल नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने जिन कामों करने का हमें हुक्म दिया है और जैसे करने का हुक्म दिया है, उन कामों को वैसे ही करना ये हम पर लाजिम है, तभी अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होगा। अगर हमने वो अमल नबी के बताए हुए तरीके के खिलाफ किया, अपनी मर्जी से लोगों को गढ़ाए हुए तरीके को अपनाया, तो ये अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। ऐसे ही आखिरी बात, जो गलती इंसान के अमाल को जाय कर देती है, वो उनमें से एक गलती ये है कि सदका करने के बाद, किसी के साथ एहसान करने के बाद, किसी के काम आने के बाद एहसान जतलाना, किसी के ऊपर एहसान करने के बाद एहसान जतलाना, किसी पर सदका करने के बाद एहसान जतलाना। ये एहसान जतलाने की वजह से अल्लाह उस बंदे के अमाल को, उसके अमाल को, उसके सदक़े को क्या जाय कर देगा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा,
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو برباد نہ کرو بالمن احسان جتلا کر، والآذا اور جس پر صدقہ تم نے کیا ہے اسے تکلیف دے کر کے تم اپنے صدقے کو برباد نہ کرو۔ معلوم ہی ہوا اس آیت کریمہ سے کہ صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا، کسی کے ساتھ احسان کرنے کے بعد، کسی کام آنے کے بعد احسان جتلانا، یہ احسان جتلانا ایک ایسا جرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان جتلانے کی وجہ سے بندے کے اعمال کو کیا ضائع کر دے گا، اسے صدقے کو قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے بندے ایسے ہوں گے، 3 قسم کے بندے ایسے ہوں گے قیامت کے روز اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا اور نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کون سے 3 لوگ؟ نمبر 1 المنان والمسبل والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب۔ فرماتے ہیں آپ پہلا وہ شخص جو دنیا کے اندر احسان کرنے کے بعد احسان جتلایا کرتا تھا، احسان جتلانے والے بندے کی طرف اللہ قیامت کے روز نہ دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا اور نہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کے لیے کیا دردناک عذاب ہوگا۔ والمسبل وہ شخص جو اپنے کپڑے کو، اپنے شلوار کو، اپنے پینٹ کو، اپنے لنگی اور تہبند کو 2 شخص ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اسبال کرتا ہے، جو ٹخنوں سے نیچے اپنے کپڑوں کو رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نہ دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کے دردناک عذاب ہوگا۔ آج یہ فیشن بن چکا ہے، آج یہ فیشن بن چکا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایسے بندے کی نماز قبول نہیں فرمائے گا جو بندہ ٹخنوں کے نیچے اپنے کپڑوں کو رکھے گا۔ میرے بھائیوں، نمازیں قبول نہیں ہوگی اور اللہ قیامت کے روز مسبل شخص، جو شخص اپنے کپڑے اور اپنے شلوار، اپنے تہبند اور پینٹ کو جو ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے، اللہ قیامت کے روز نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا اور نہ اس گناہوں کو معاف کرے گا اور اس لیے کیا دردناک عذاب ہوگا۔ اور تیسرا شخص والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب، جو جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے سامان کو بیچتا ہے، قیامت میں اللہ اس شخص کی طرف نہ دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا اور نہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کے دردناک عذاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص جو احسان جتلاتا ہے، جو کیا ہے احسان جتلاتا ہے، احسان جتلانے کی وجہ سے اس کا وہ احسان اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے، اس کی وہ خدمت، اس کی وہ نیکی، اس کا وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے، ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں اور اس کے علاوہ جرائم ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ مشہور باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ان غلطیوں سے محفوظ رکھے، کفر سے محفوظ رکھے، شرک سے محفوظ رکھے، ریاکاری سے محفوظ رکھے اور ایسے ہی احسان جتلانے سے محفوظ رکھے، اور ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت بسائے، اللہ کا احترام بسائے، اللہ کے رسول کا احترام بسائے، دین سے محبت بسائے، دین کا احترام بسائے۔ اللہ ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق جن کاموں سے وہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کاموں سے بچائے جن کاموں سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس دین پر چلائے جو دین جنت کی راہ، جو دین جنت کی طرف لے جانے والا، اللہ ہم سب کو اس راستے پر چلائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔